So good afternoon, students. Today I will discuss about zeroth law of thermodynamics and further proceed about the heat and work topic of thermodynamics of your subject. This is the first slide of today topics. Temperature. What is the meaning of temperature? The thermodynamics basically deals with the science of temperature, and the temperature is associated with the ability of differentiate between of the hotness and the coldness. टेम्परेचर का जो मतलब रहता है बेसिकली जो डील करता है वो हॉटनेस और कोल्डनेस से करता है. And the main thing about the temperature related with the thermal equilibrium, when the two bodies are the different temperature are brought into the contact, sometimes later they attain a common temperature. Now they are in thermal equilibrium. Suppose that if you are in a house in a bucket of a hot water and a separate bucket of a cold water, after some time you presume that the water will be have a constant heat and a constant temperature also after the thermal equilibrium condition attending. This is the zeroth law of thermodynamics. It is the base for the all temperature measurement. जितने भी temperature measurement हैं वो zeroth law of thermodynamics के अंतर्गत में आते हैं. कोई भी temperature measurement हो, वो constant volume का भी temperature measurement हो सकता है, constant pressure का भी हो सकता है, electric resistance temperature measurement हो सकता है. ये सब उन सब का base जो है वो zeroth law of thermodynamics है. Second thing is the thermal equilibrium is the key word for the zeroth law. zeroth law के लिए जो सबसे बड़ा की मंत्र है, की रोल है, वो आपका thermal equilibrium है. Without thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics के concept को समझना impossible है. This is the zeroth law of thermodynamics. When a body here focus on when a body A is in thermal equilibrium with a body B. यदि कोई एक बॉडी बी बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम पे है और ऑल्सो सेपरेटली विथ ए बॉडी सी, देन बी एंड सी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. यदि ए और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सेपरेटली सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. इसको मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ. दिस इज द डायग्राम. व्हेन ए एंड बी बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, यदि ए और बी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हैं, तापीय संतुलन जिसे बोलते हैं, उसी तरीके से सेपरेटली यदि ए और सी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, तो बी और सी बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होंगी. दिस इज द मेन फंडामेंटल अबाउट द zeroth law of thermodynamics. इसे हम zeroth law of thermodynamics का नाम देते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द zeroth law. ये जो बोला गया है zeroth law का स्टेटमेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कॉपी में. नोट डाउन इन अ कॉपी नोटबुक. zeroth law of thermodynamics यहाँ पे लिखा है ZEROTH LAWOF थर्मो TERMO DYNAMICS. थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पे TH कर लीजिएगा, H नहीं लगा हुआ है. नोट डाउन कर लीजिए. Formulated by scientist name is R.H. Fowler in 1931. R.H. Fowler ने 1931 में इसको बताया था. It is the basis of the temperature measurement. zeroth law of thermodynamics जो है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस होता है उसके पर डिपेंडेंट है. This is the diagram. This is the working principle diagram. Thermodynamic equilibrium zeroth law. Object 1 that is thermometer, जैसा कि घरों में इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं घर में. Object 2 and Object 3, जब थर्मोमीटर किसी बॉडी के संपर्क में आता है तो उसका टेम्परेचर बताता है.
तो बॉडी 2 के संपर्क में आएगा तो सेपरेटली वो टेम्परेचर बताएगा, बॉडी 3 के संपर्क में आएगा तो सेपरेटली टेम्परेचर बताएगा। तो आफ्टर सम टाइम क्या देखेंगे कि थर्मोमीटर और बॉडी 2 के बीच में हीट जो है बैलेंस है वो बराबर है, हीट बैलेंस है। और सिमिलरली ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट थर्मोमीटर के बीच में आफ्टर सम टाइम जो हीट बैलेंस है वो प्रॉपर है। तो जब इनके बीच में हीट बैलेंस सेपरेटली है तो बॉडी 2 यानी ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट टी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होंगे। तो दिस इज द मेन फंडामेंटल अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका मेन वर्किंग प्रिंसिपल कहलाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द टेम्परेचर। Thermal equilibrium is said to be exist between the two systems if both the system have the same temperature and there is a no heat transfer between the system. Thermal equilibrium उसको बोला जाता है जहाँ की कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है और बॉडी जो रहती है सेम टेम्परेचर पे रहती है, उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलते हैं। Second thing is, in a microscopic approach, temperature can be defined as the average kinetic energy of the molecules. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में देखेंगे तो टेम्परेचर को डिफाइन यदि करना है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो होती है वो होती है। इन अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एंड बाय दिस इज द माइक्रोस्कोपिक मैनर, दिस इज नॉट ए काउंटिंग इन द माइक्रोस्कोपिक मैनर। माइक्रोस्कोपिक में जो भी स्टडी की जाती है इन्हें लार्ज लेवल की जाती है और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि वहाँ पे कितनी हीट अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रही है और वर्क जो है कितना परफॉर्म हो रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक की अप्रोच लगाई जाती है। दिस इज द टेम्परेचर मेजरमेंट प्रोसीजर। एक रेफरेंस बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बॉडी की चेक करती है विद अकॉर्डिंग टू द इफ द टेम्परेचर इज चेंजेस व्हाट आर द चेंजेस इन द बॉडी। यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस बॉडी का तो व्हाट विल बी चेंजेस इन द बॉडी। द चेंजेस इन द selected characteristics may be taken as an indication of changes in temperature. जितने भी changes हो रहे हैं selected characteristics, जितने भी changes हो रहे हैं वो change of temperature को बता रहे हैं। The selected characteristics called the thermoelectric property. तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी characteristics हैं ये thermoelectric properties कहलाती हैं। Suppose that जैसे expansion of मरकरी करेंगे ट्यूब पे जो कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को बताएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द रेफरेंस बॉडी व्हिच इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ द टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। एक रेफरेंस बॉडी जहाँ की टेम्परेचर का निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आपका थर्मोमीटर कहलाता है। जैसे घरों में थर्मोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो मरकरी भरी रहती है वो एक्सपांड होती है बिकॉज ऑफ वहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है। यदि आपकी बॉडी गर्म है तो बॉडी में से हीट सप्लाई होकर थर्मोमीटर में जाएगी और थर्मोमीटर में जो मरकरी रखी है वो एक्सपांड होगी। कितने तरह के थर्मोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है और पायरोनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है जिसमें कि गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बना रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द बोलना चाहिए जब हम उसको मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। तो ये थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है मिनी लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है जिसमें कि दिखाया गया है कि मरकरी रिजर्वायर की हाइट कितनी है। स्केल जो लगाई गई है ये डेटा में है आपका। इसके बाद जो गैस भरी हुई है बीकर में वो दिखाया गया है। फ्लेक्सिबल जो हॉस पाइप लगाए गए हैं दोनों को बीकरों को कनेक्ट करने के लिए वो है। और जो इन्वायरमेंट है जिसको कि मेजर करना है उसके लिए हमने यहाँ पे गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर से कि गैस किस टेम्परेचर पे है वो हम देख सकते हैं, बट ड्यूरिंग दैट कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन्स द कांस्टेंट। उस दौरान जो गैस का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर प्रेशर इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। एज द नेम सजेस्ट वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम जो रहता है उस दौरान कांस्टेंट बना रहता है। तो उसके लिए जैसा कि Pv/T इज इक्वल टू इक्वेशन कांस्टेंट चलती है, तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो P1 V1 जो है वो कांस्टेंट हो गया V2 के, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 बचेगा।
एंड P1 T1 मस्ट बी नोन वैल्यूज लाइक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वैल्यूज, ये आपकी नोन वैल्यूज रहती है। जब भी ट्रिपल पॉइंट वाटर की बात करेंगे तो उस टाइम पे काउंट होगी। P2 कैन बी मेजर, नाउ T2 कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द अबव रिलेशन। तो P2 को हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द मेजरमेंट कंडीशंस, जैसा कि आपने यहाँ पे बिगर कंडीशंस पे देखा कि प्रेशर कितना वहां पे रिलीज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम प्रेशर को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। This is the another diagram for the constant volume gas thermometer in which the pressure at the outer side or the pressure of the gas in the bulb can be measured. गैस का टेम्परेचर यहाँ पे बल्ब में कितना है वो अपने को निकालने के लिए ये वाला अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें कि दिखाया गया है जो P है दैट इज द P ऑफ द गैस इन द बल्ब। तो P नॉट जो है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमको पता रहता है 1.01325 पार प्रेशर रहता है। रो m इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये जो लिखा है ये 13.6 होती है। G इज द डेटम, कितनी हाइट पे ये ऊपर गया है, और स्मॉल g इज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, दिस इज द अरेंजमेंट जहाँ की कैपिलरी दिखाई गई है, मरकरी मैनोमीटर दिखाया गया है, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग दिखाई गई है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसमें कि आपकी ट्यूब जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं दैट इज द P ऑफ द गैस इन द बल्ब, जो प्रेशर रहता है गैस का बल्ब में वो रहता है। जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यदि हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की, तो इक्वेशन याली भी इस्तेमाल होती है, PV इज इक्वल टू MRT। उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू चेंज ऑफ प्रेशर। अब चूंकि आपका यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर यदि यूज करेंगे तो उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यदि हम मान के चलें कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, उस केस में इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यदि मान के चलें कि प्रेशर कांस्टेंट है, उस केस में इक्वेशन ये हो जाएगी। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्वेशन में डेल्टा P बाई R आ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इंक्रीज। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो प्रेशर इंक्रीज के प्रोपोर्शनल में रहेगा। फिर नेक्स्ट इज द कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर क्या कहलाता है? एक ऐसा ऑपरेटर जहां की कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं पे ही हम कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे गैस का। ओनली डिफरेंस इज दैट कि वॉल्यूम की जगह पे आपका जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट बाय मेंटेनिंग ए कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द हाइट ऑफ H। जो हाइट अभी मर्क्यूरी लेवल के ऊपर जा रही थी ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम, अब ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम के कारण हाइट ऊपर जाएगी। एंड द वॉल्यूम इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। वॉल्यूम जो यहाँ पे वेरी होगा वो प्रेशर के हिसाब से चेंज होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। Electrical resistance thermometer. The working principle of an electrical resistance thermometer is that the change in resistance of a metallic wire proportional to the change in temperature. जितना भी मेटेलिक वायर के रेजिस्टेंस में चेंजेस हो रहे हैं वो चेंज ऑफ टेम्परेचर के बराबर है, प्रोपोर्शनल है। तो यूजली यूज्ड मटेरियल इज द प्लेटिनम वायर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में वायर इस्तेमाल किया जाता है वो प्लेटिनम टाइप का रहता है। तो उसमें जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आउटपुट, जहाँ की रेजिस्टेंस एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड RT। और रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 और R2 के फॉर्म में लगा हुआ है जो कि मटेरियल्स का रहता है। तो उन मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इकट्ठा होता है या क्रिएट होता है। एंड द पावर इज सप्लाइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कि आप घरों में बिजली चालू करते हैं तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और बाकी सारी चीजें चलती हैं। थर्मोकपल क्या होता है? एट ए थर्मोकपल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट। दिस इज वर्किंग ऑन द सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट पे काम करता है जिसमें कि दो डिसिमिलर मेटेलिक वायर जो रहती है A और B फॉर्मिंग करती है टू जंक्शंस का, P एंड Q का। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देखेंगे, दिस इज द डायग्राम। तो यहाँ पे दो मटेरियल अलग अलग सोर्स है, डिसिमिलर मेटल है। एक मटेरियल यहाँ पे है आपका जैसा कि दिखाया गया अरेंजमेंट, दिस इज द कॉपर और कॉन्स्टेंटेन और द कॉर्मेल और एल्यूमिनियम। इसी तरीके से प्लेटिनम और द रोडियम। तो दो कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए, जैसे दो मटेरियल है आपके यहाँ पे,
एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, दोनों डिसिमिलर है। दोनों मटेरियल में P और Q जंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक मेजरिंग जंक्शन है जैसे कि हम T1 का नाम दे रहे हैं, दूसरा रेफरेंस जंक्शन है जिसको हम T2 का नाम दे रहे हैं। दिस इज द कोल्ड, दिस इज द हॉट। तो हीट सोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज। यहाँ पे जो हीट सोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स से किया जा रहा है। तो ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा यहाँ पे पता चलता है जब दोनों मटेरियल को ज्वाइन किया जाता है एक जंक्शन पे, तो हम देखते हैं कितना वोल्टेज इकट्ठा हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के डिसिमिलर मटेरियल्स को हम यूज करते हैं। तो कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द थर्मोकपल आर, पहला है कॉपर, दूसरा है कॉन्स्टेंटेन, दूसरा है क्रोमिल और एल्यूमिल, तीसरा है प्लेटिनम और द रोडियम। मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, change in length of mercury column inside an avogaded glass tube is the thermometric property, and the length of mercury column increases with the increase in temperature linearly. जितनी भी mercury column की length है वो temperature के accordingly linearly बढ़ती रहती है। easy to fabricate and easy to use, जितने भी ग्लास थर्मोमीटर बनाए जाते हैं इनको बनाना बहुत ही आसान है, इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बट मरकरी कैन नॉट बी यूज अंडर -30 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी को -30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इट बीइंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। ये मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। सिमिलरली अल्कोहल कैन नॉट बी यूज बिलो अबव 85 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल। यदि 85 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अल्कोहल को यूज करेंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट उसका शो होने लगेगा और वो हार्मफुल रहेगा। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ग्लास थर्मोमीटर जो आपको बताया जा रहा था, इसी के बारे में है। एक ग्लास है जिसमें कि मरकुरी भरी हुई है, तो मरकुरी लिक्विड के फॉर्म में रहती है और लिक्विड जो है मरकुरी या अल्कोहल के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे एक नैरो ट्यूब है ग्लास के अंदर जिससे कि वो पास होता है। एक स्केल बनी है जैसा कि थर्मोमीटर में आप देखते हैं, और एक बल्ब है जैसा कि यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, जब किसी बॉडी के कांटेक्ट में वो चीज आती है तो वर्किंग ऑटोमेटिकली इसकी स्टार्ट हो जाती है। अब हीट के बारे में चर्चा करेंगे कि हीट क्या होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। यदि कहीं पे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस। वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। एंड द इट इज द ट्रांजियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट जो होती है ट्रांजियस फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है। इट विल बी चेंज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पाथ, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये चेंज होती रहती है। तो ये जो हीट रहती है पाथ फंक्शन भी कहलाती है, लो ग्रेड की एनर्जी भी है, और नेगेटिव और पॉजिटिव हीट होती है। यदि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफर होगी तो उसे हम पॉजिटिव हीट का नाम देंगे, और यदि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाएगी तो उसे नेगेटिव हीट का नाम देंगे। सपोज दैट यदि आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया तो वो गाड़ी के अंदर पॉजिटिव हीट के रूप में काउंट होगी, जबकि यदि गाड़ी के अंदर से स्मोक निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो वो नेगेटिव हीट रहेगी, क्योंकि अपने साथ में स्मोक जो रहता है हीट लेके जाता है। जब हीट लेके आएगा तो वो नेगेटिव हीट कहलाएगा। और यदि हीट अंदर आ रही है थ्रू द पेट्रोल और द कंबस्टिबल मिक्सचर के द्वारा हीट अंदर आ रही है, कंबस्टिबल मिक्सचर अंदर आ रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव हीट का नाम लेंगे। तो हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव हीट के लिए कहलाता है, नेगेटिव हीट हीट रिएक्शन के लिए कहलाता है। तो हीट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड। हमने ये देखा है कि हीट ऑलवेज फ्लो टू हॉट टू कोल्ड साइड। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑल्सो। फर्स्ट लॉ में भी ऐसा बोला गया है कि कभी भी हीट जो है कोल्ड टू हॉट नहीं फ्लो होती है। यदि ऐसा करना है कोल्ड टू हॉट फ्लो कराना है तो उसके लिए फिर सेकंड लॉ आ जाएगा पिक्चर में। अभी हीट का जो फ्लो हो रहा है वो हॉट टू कोल्ड हो रहा है। यदि हॉट टू कोल्ड होगा तो ये नेचुरल वे होता है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यदि मरकरी जो थर्मामीटर रहता है वो यदि पारा उसमें चढ़ रहा है ड्यू टू द हीटिंग, यदि उसको आप छिड़कते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे हीट ट्रांसफर होके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि उस टाइम पे टेम्परेचर आपका वेरी करे, टेम्परेचर में भी कांस्टेंट। एनर्जी ट्रांसफर बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज द ट्रांजियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी, पाथ फंक्शन, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। हीट इज नॉट काउंटिंग एज अ हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? वर्क जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वर्क, जो कि न्यूटन मीटर में दिखाया जाता है और जूल में होता है। इसे हम वर्क का नाम देते हैं। एनर्जी यदि ट्रांजिएंट फॉर्म में है तो वो वर्क का रूप है, पाथ फंक्शन होती है, और वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी माना जाता है, क्योंकि टरबाइन से जब कभी आपको एनर्जी मिलती है, वर्क डन मिलता है, तो वो हाई ग्रेड का रहता है, हाई अमाउंट का रहता है। किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, इस तरीके से जितना भी आपको वर्क डन मिल रहा है वो हाई ग्रेड का है। एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, दैट इज द पॉजिटिव। यदि सराउंडिंग से सिस्टम पे काम किया गया तो वो पॉजिटिव है। सॉरी, सिस्टम से सराउंडिंग पे काम किया गया, सपोज सिस्टम से कोई काम मिल रहा है, जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी से आपको काम मिल रहा है, गाड़ी चल रही है विद द हेल्पिंग ऑफ द टेकिंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल को आपने अंदर लिया तो गाड़ी फिर चलनी स्टार्ट हुई, तो हीट एनर्जी से वर्क डन मिला, तो सिस्टम से सराउंडिंग पे काम हो रहा है। लेकिन यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बाय द सराउंडिंग, जैसा कि रेफ्रिजरेटर के साथ होता है, घरों में आप रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो वहां पे एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है। जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव वर्क डन में आएगी, ठीक है ना। जब एनर्जी आप सप्लाई करेंगे सिस्टम को तो वो नेगेटिव वर्क डन में काउंट होगी। दिस इज द वर्क एंड हीट। तो बिफोर क्या होता है और आफ्टर क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पे यदि देखेंगे वर्क के केस में कि वर्क पॉजिटिव, वर्क इज नेगेटिव, दो कंडीशन है। वर्क पॉजिटिव है तो क्या है, तो वर्क इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यदि कोई चीज को आपको चलाना है और वर्क पॉजिटिव को बोल रहे हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो चीज मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द एनवायरमेंटल टू द सिस्टम, सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होगी एंड द सिस्टम एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। सिस्टम एनर्जी यदि इंक्रीज हो रही है वो वर्क पॉजिटिव के रूप में है। इसी तरीके से वर्क इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। यदि फोर्स अपोजिट टू द मोशन लगेगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव, बिकॉज ऑफ वहां पे एनर्जी लूज हो रही है, तो सिस्टम एनर्जी डिक्रीजेस। वहां पे सिस्टम से एनर्जी जो है एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है, ना कि एनवायरनमेंट से सिस्टम की तरफ आ रही है। तो वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ए सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट व्हेन ए नेट फोर्स acts on the system over a distance, that is called a work, and that is a sign of work कि work positive कब है, work negative कब है। तो work positive when the force in the direction of motion, जब force जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लगेगा तो उसे पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। वर्क इज नेगेटिव, वर्क नेगेटिव कब काउंट होगा, व्हेन द फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। यदि जो फोर्स लग रहा है मोशन के अपोजिट में लग रहा है तो वो हम नेगेटिव वर्क के रूप में काउंट करेंगे। थैंक यू। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द स्टडी फ्लो एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। Yes, somebody having a questions, please ask. Time is 10 minutes left. Otherwise, I will take attendance. सर नोट्स चाहिए थे सर। नोट्स देता जा रहा हूँ ना मैं सबको। अभी मैंने लास्ट क्लास के नोट्स दिए थे, YouTube की लेक्चर लिंक भी दी थी मैंने, YouTube की डाले थे। हाँ क्या बोल सर उसमें से हाँ बोलिए। यस सर, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ भी दे देंगे, हमने पीपीटी फॉर्म में दिया था, पीडीएफ भी मिल जाएगा। यस सर, ठीक है। और हमने लिंक भी दी थी YouTube की, लेक्चर लिंक। यस सर, वो देखा था। नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में चाहिए सभी को या पीपीटी में चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं देता जाऊंगा। हाँ पीडीएफ दे दें, ठीक है पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तो YouTube की लेक्चर लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।